So myself, Good morning, sir. Dilip Singh Khara. Very good morning. You keep mute yourself. At the last, we will keep a QA session, question and answer session. So that time you can unmute yourself and we will discuss the things. Okay. So myself, Dilip Singh Khara, and this is IMU CET coaching, which is actually run by myself, which is Merchant Navy India, where many of the students are getting the sponsorship and all. I have you can go through my website and you will find many testimonials over there also. Just now I have shown you a video. If you have seen that, in that a entire life which will be go around and how thing will be controlled, that actually explained in the video. Now I'll show you one more video where it will give you a faith that there is a big opportunity which is waiting for you, which is actually, you may have seen this. तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपोर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं. We will see some of the things today. Our this motive to take this session is, I will explain you something about the merchant navy, and then you can ask the question later on at the end when we have QA session. Somebody is telling that not audible. Just write a message, I am audible to everyone. Just write it, anyone. Okay, done. ठीक है. So we will start. I had make it one PPT, which is I have put it, try to put it everything in that. So this is we are going to be discussed today. Now, first of all, we will come what is merchant navy? We have to understand this. In simple way, if I'll say, whatever you are looking around you, आप क्या देख रहे हो? जैसे आप जाते हो मैकडोनल्ड्स में, तो आप क्या देख रहे हो? बर्गर देख रहे हो, ठीक है? जैसे आप जाते हो शॉप्स में एंड बाइंग ए शूज विद द कंपनी ऑफ प्यूमा, तो प्यूमा में जो आप शूज देख रहे हैं, आप जब बाहर जाके देखते हैं कि गेहूं आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जैसे ऑयल है, whatever the things, even plywoods itself, whose the thing is importing from the other country, वो सारी चीजें शिप के द्वारा आ रही हैं. You will not believe that 90% of trade cargo is only done by
द शिप्स. इट मीन्स जो इकोनॉमी है जिसमें जीडीपी की बात की जाती है, इफ यू हर्ड अबाउट द जीडीपी, इस कंट्री का जीडीपी इतना है, इस कंट्री का जीडीपी इतना है, मैं आपको बताऊं, सिंगापुर जो है वो केवल शिपिंग फील्ड से अपना पैसा कमा रहा है, एंड हिज जीडीपी इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है. बट गेटिंग द मनी फ्रॉम द शिपिंग फील्ड ओनली, द रीजन इज बिकॉज इट इज पेइंग यू अ लॉट. आई विल टेल यू कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं. सो यू कैन कंसिडर इन दिस वे कि आप एक नेशन की हेल्प कर रहे हैं कार्गो में. कैसे? आई विल टेक एग्जांपल. सपोज आपने एक ऑयल टैंकर में आप काम कर रहे हैं और एक क्रूड ऑयल आप ला रहे हैं, और आपकी बारीक सी मिस्टेक की वजह से क्रूड ऑयल आने में 10 दिन लेट हो गया, 10 डेज. नाउ यू सी 10 डेज में वो 50 पैसे बढ़ जाएगा, 50 पैसे मल्टीप्लाई विथ 1 अरब लोग. नाउ यू कैन कंसिडर आपकी एक सिंगल मिस्टेक कितना नुकसान कर सकती है उस कंट्री के लिए जहां पे आप कार्गो लेके जा रहे हैं. So now you can understand in a better way that what is the merchant navy and why it is important. That's why everybody is paying a lot. जो अलॉट पैसा आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज उसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है. अगर आप गलती करते हो तो यू आर डायरेक्ट इफेक्टिंग टू दोज पर्सन हु आर सर्विंग इन दैट कंट्री, जिस कंट्री के लिए आप कार्गो लेके जा रहे हैं. So this is all about the merchant navy. I think everybody's understood that. Now we will see कि ये this is like entirely adventurous life. This is not like 9 to 5 job. आप मॉर्निंग में गए, अपनी टेबल साफ की, बैठे, देन वर्क किया और 5 बजे उठ के वापस आ गए. It's a stagnant life. But this is not a stagnant life. This is adventurous life. Purely adventurous life. You don't know what kind of wave you are getting next minute. आप imagine करिए, you are on the ship, around only sea water का वॉइस आ रहा है, एंड नेक्स्ट क्या वेव आएगी आपको पता ही नहीं. आपको क्या स्पीड मेंटेन करनी है पता ही नहीं. आगे जो वाटर चल रहा है वो आपके साथ चलेगा या आपके सामने से आ रहा होगा या साइड से आ रहा होगा, यू कैनॉट इमेजिन. So in those conditions, you have to prepare yourself, and all time you have to attentive. So this is like very adventurous job. Every 20 days, you are touching a different kind of port. I'll tell you the advantage. Luxury pay package. I am telling you the package of this. You won't believe on that. While cadetship, जब आप training कर रहे होते हो, then they are paying you 50 to 60,000 rupees. And on the highest post, when you are become captain or chief engineer, it's my guarantee that minimum $10,000 per month minimum. Just converted, how much is this? 6 to 7 lakh rupees per month. It is minimum when you become a captain. But captain is taking time. You have to be put in yourself 6 to 7 years in this field. After training, then you will become a captain. So you can imagine 6 महीने काम किया, अर्निंग अराउंड अ लॉट, देन कम बैक और घर पे 6 महीने रेस्ट कर रहे हैं. ऐसा कोई नहीं देगा आपको. Nobody is giving you long leaves what you are getting in this. But disadvantage ये है because during the on ship you will not get a leaves जो आपको शोर पे मिलती हैं. आज शाम को चले गए उस फंक्शन में, कल उसमें चले गए. That you have to disadvantage of course. But advantage ये है कि you will have a long. Second thing, जो अलॉट पैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को चिंता ये होती है जब ज्यादा पैसा आता है. Please mute your. This is second thing. When we are getting a lot money, we are worrying about the taxes. You know that 30% देना पड़ेगा, 40% देना पड़ेगा. But what you are earning in this shipping field, इसमें कोई टैक्स नहीं है. अब इसको समझने की बात है क्यों नहीं है? बिकॉज जो पैसा आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सी वाटर, और सी वाटर किसी का नहीं, इट इज एवरीवन. तो जब टैक्स देने की बारी आएगी तो आप दोगे किसको? तो टैक्स किसी को नहीं देना है. सो टैक्स फ्री है. आपका एनआरआई स्टेटस रहता है. यू नो दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एनआरआई. इन एवरी कॉलेज, एवरीवेयर you will have a different perception, different personality, this different advantage when you become a NRI citizen, right? अब मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं इस फील्ड को अदर फील्ड से. सी ए बॉय, he got at IIT खड़गपुर में उसका एडमिशन हो गया.
एंड उसने मैकेनिकल ज्वाइन किया सपोज, एंड एक बच्चे ने मर्चेंट नेवी में डीएनएस कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ कंपैरिजन करते हैं, डीएनएस वाला बच्चा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में ही ऑन द शिप एंड अर्निंग द मनी, ठीक है, एनआरआई स्टेटस उसको भी मिल गया, पैसा भी बहुत मिल गया, एंड दिस काइंड ऑफ सेम सिचुएशन इज विथ एवरीवन। 40 बच्चे सिलेक्ट हुए तो 40 के 40 के साथ ये सिचुएशन रहेगी, 40 के 40 का अच्छा पैकेज रहेगा, 40 के 40 एनआरआई स्टेटस में होंगे, एंड 40 के 40 इज गेटिंग गुड लाइफ। नाउ वी टॉक अबाउट द आईआईटी केजीपी में जिसने मैकेनिकल ज्वाइन किया, उसमें सपोज 40 बच्चे हैं, डू यू कॉन्फिडेंट कि हर एक बंदे का जो प्लेसमेंट है वो आउट ऑफ इंडिया होगा? नॉट नेसेसरी। क्या हर एक बच्चे को 50 लाख का पैकेज मिलेगा? नॉट नेसेसरी, राइट? इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि हर एक का जॉब भी, बट हियर इट इज एवरीथिंग इज फिक्स्ड। बिफोर गोइंग इन ए ट्रेनिंग योर जॉब इज फिक्स्ड, आपका जॉब लग गया है, एंड देन यू आर गोइंग टू बी डू योर ट्रेनिंग फॉर द मर्चेंट नेवी। It means your career is already secure, then you are going to be paid. अब IIT KGP में इस perception कि हाँ वहां जाते ही मेरा जॉब लग जाएगा, but there are 10 to 15% student they are not getting the job. अगर आपका नंबर उसमें आ गया देन, अगर आप पास नहीं कर पाए तो, आपका CGPA 7 से कम रह गया तो, so in these conditions you will not get a job. But this kind of the things will not happen with the merchant navy. अगर आपका सिलेक्शन इज वेरी हार्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिलेक्शन प्रोसेस इज हार्डर देन योर आईआईटी केजीपी में एडमिशन लेने से भी हार्ड है सिलेक्शन, बट अगर हो गया देन योर लाइफ इज सिक्योर बिकॉज आपका जॉब पहले लग गया। एंड दीज आर द एडवांटेज, सेम एडवांटेज के लिए आप आईआईटी केजीपी में काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? लग्जरी पे पैकेज, आपका ग्लोरियस लाइफ हो, आप बाहर घूम सके, एनआरआई स्टेटस हो, फॉर दीज थिंग्स यू आर गोइंग इन दैट फील्ड। But same thing you are getting here, and it is securing also. There it is not secured. There it is not something like that कि हाँ भाई हम जो है सेफ हो गए एकदम, हो गया अब तो हम आराम है, ऐसा नहीं है। All 4 year you will be in the tension, and बाद में भी, लगने के बाद में भी you will be in the tension कि अरे यार मेरे को इससे आगे निकलना है तो I have to do it। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, आप अपने शिप पे काम करिए, आपके कंपैरिजन में कोई नहीं। When you go in a company, you will find that एक मैनेजर है तो वहां पे 20 मैनेजर हो रहे हैं, तो वो 20 मैनेजर में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे जब आप शिप पे जाओगे, इफ यू आर बिकम ए कैडेट तो आप एक ही कैडेट रहोगे। When you become 4th इंजीनियर या 3rd ऑफिसर तो आप वो एक ही रहोगे, कैप्टन एक ही होता है, 2 कैप्टन होते ही नहीं, तो कंपैरिजन कहां से होगा? तो कंपैरिजन वाला चीज ही नहीं। एवरीबडी इज गेटिंग सेम सैलरी, दीज थिंग्स यू कैन नॉट फाइंड ओवर देयर। सो दिस आई वाज टेलिंग यू। Now, this is the minimum things. अब हम इसका process समझते हैं। Process is like, as per the government, the candidate should have 60% in his PCM and 50% marks minimum in his English. But again, to get sponsorship, ये तो government का eligibility criteria. But to get a good sponsorship, you need to be have minimum 70%. अगर आपके पास 70% PCM है, then you will have a good advantage. और उसके साथ अगर आपके पास CBSE बोर्ड का advantage है, then I am telling you with the guarantee, you go with me for the training, guarantee you will get your sponsorship, guarantee, अगर आपके पास ये eligibility रहती है। See, in other eligibility also there is a possibility, but there you have to work hard, because आपको उन बच्चों से comparison करना है जिन्होंने already अपने आप को prove कर दिया है। तो आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपकी इंटरव्यू में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। So this is the thing basically which you have to be maintained. So this is the eligibility criteria, age criteria मैंने बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बिफोर स्टार्टिंग दिस फील्ड यू शुड गो फॉर मेडिकल, बिकॉज आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, कलर ब्लाइंडनेस कोई बीमारी नहीं है, बट और पता भी नहीं लगता है अनटिल अनलेस आप जाके उसका चेकअप नहीं करो। तो कलर ब्लाइंडनेस प्योरली नॉट अलाउड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फॉर द डीएनएस योर आईज शुड बी 6/6। अब किसी बच्चे को चिंता हो रही होगी कि मेरे तो चश्मा है, मैं कैसे करूंगा? जितने भी स्पेक्स वाले बच्चे होते हैं, दे जनरली गो फॉर लेसिक, लेजर ऑपरेशन, जो कि मैं समझा दूंगा कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, कैसे होता है, विच इज सेफ एंड अलाउ इन दिस फील्ड। तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। नाउ दिस इज ए करियर फ्लो चार्ट।
सबसे पहले यू कैन सी इन द राइट साइड डेक कैडेट और इंजन कैडेट। अब हम ये समझते हैं, ये दो स्ट्रीम होती है, पहली हो गई इंजन साइड और दूसरी हो गई डेक साइड। अब कौन किस में जा सकता है? सपोज किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस, आईटी इंडस्ट्री, इन सब में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा ज्वाइन करेगा डेक कैडेट। और जिस बच्चे को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूमैटिक, इंजन में काम करना अच्छा लगता है, वो ज्वाइन कर सकता है इंजन साइड। दोनों में सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं होता। डेक कैडेट में जितनी मिलेगी, इंजन कैडेट में भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। थर्ड ऑफिसर में जो मिलेगी, फोर्थ इंजीनियर में उतनी ही सैलरी मिलेगी। सेकंड ऑफिसर में थर्ड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर सेकंड इंजीनियर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सैलरी विल बी इक्वल। वो chief engineer will be head on entire engine department and captain is head on the deck department bas. This is only the difference. This is only the difference and the things about the career. So इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सो दिस इज अबाउट ए करियर चार्ट। अब कोई को किसी का डाउट होगा कि ये हम कैसे गेन करेंगे। देखो, डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर में जाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको शिप पे रहना होता है। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर थर्ड से सेकंड आने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक एग्जाम रखती है जिसके सेंटर सब जगह, गवर्नमेंट करती है सारे काम इसमें। जैसे दिल्ली में भी सेंटर है, देन मुंबई है, कोलकाता है, एंड सब जगह इसके सेंटर्स हैं। तो ये सेंटर्स पे आप जा सकते हो और वहां पे अपना एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं। फिर आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट कि आप अब प्रमोट हो गए, और फिर कंपनी में जैसे ही आप सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये फिर मैं एक चीज और बोलनी है, अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो आप सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर सकते हो। जब ये एंड हो जाएगी तो हम सेम लिंक से ही वापस ज्वाइन करेंगे। अब आते हैं, इसमें डीएनएस में भी दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है स्पॉन्सर्ड, एक नॉन स्पॉन्सर्ड। नॉन स्पॉन्सर्ड होता है जिसमें जॉब अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग जॉब लेते हैं, प्लेसमेंट टाइप। और एक होता है स्पॉन्सर्ड। मेरा जो है नॉन स्पॉन्सर्ड में मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड कभी नहीं करता। कब नॉन स्पॉन्सर्ड अच्छा है? जब उसके पीछे उसकी फैमिली में कोई मर्चेंट नेवी में हो और कोई ये रखे कि हाँ यस, आई एम टेकिंग गारंटी फॉर हिम कि मैं इसको प्लेस करवा दूंगा, बस इसको तो एडमिशन लेना, देन यू चूज नॉन स्पॉन्सर्ड। अदरवाइज माई सजेशन इज ऑलवेज गो विद द स्पॉन्सर्ड वन। स्पॉन्सर्ड में मैंने देखो एक लिस्ट डाल रखी है, एंग्लो है, एआरआई है, आईएमयू है, देन आईएमयू ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, एंड देन इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, ग्रेट ईस्टर्न है, तुलानी है, टीएस रहमान है, एससीआई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये मैंने सारे स्पॉन्सर्ड वाले डाल रखे हैं इधर। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है। ठीक है। अब किसी बच्चे की डाउट आ रहा होगा कि डीएनएस मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा नहीं। ये गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्लान कर रखा है, इसमें सब जगह गवर्नमेंट है, आपको डिग्री गवर्नमेंट ही दे रही होगी, कहीं भी जाओ चाहे आप। गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्लान किया है कि एंड ऑफ द डे यू विल गेट ए डिग्री ऑफ बीएससी नॉटिकल साइंस विच इज ग्रेजुएशन। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, सपोज आप शिफ्ट पे गए एंड देन यू फाउंड दैट कि नहीं यार, इट इज नॉट फिट फॉर मी, मैं नहीं काम करूंगा, मैं कम कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ कल्चर, तो आप बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आप के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है एंड यू कैन ज्वाइन दैट। और या फिर यू वांट टू गो इन हायर डिग्री, एमबीए करना चाहते हो, दैट आल्सो यू कैन डू दैट विद द डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अब ये है बीटेक में। बीटेक में जनरली स्पॉन्सरशिप नहीं होती, बट कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनका प्लेसमेंट 85% से भी ऊपर है, और गारंटेड उनको प्लेसमेंट करवाना पड़ता है, बिकॉज द गारंटी इज टेकिंग इन बैक एंड बाय दिस गवर्नमेंट इज हैंडलिंग एवरीथिंग। अभी कोई बच्चा ये कहेगा कि इंस्टीट्यूट तो ऐसे ही दिखा देगा कि वो प्लेस्ड हो गया। नो, इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं दिखा सकता। इंस्टीट्यूट में जब तक आप शिप पे नहीं जाओगे, तब तक आपकी एंट्री नहीं होती है गवर्नमेंट में कि आपका प्लेसमेंट हो गया। सपोज किसी का प्लेसमेंट हो गया और वो जहाज पे नहीं गया, देन दैट पर्सन इज कंसिडर नॉट प्लेस्ड। सो गवर्नमेंट इज पुशिंग टू द इंस्टीट्यूट कि उसको प्लेस करवाया जाए। So here you can assume that your job is secured. ठीक है। Now which one you can choose? देखो, मैं जनरली बच्चों को बीटेक के लिए प्रेफरेंस देता हूं, बट इट इज ऑल डिपेंड ऑन। सपोज देर आर मेनी स्टूडेंट्स, दे नीड मनी, तुरंत मनी चाहिए होती है,
कि भाई मेरा फैमिली इज मिडिल क्लास एंड आई नीड मनी फॉर दैट, सो दोज कैंडिडेट्स प्लीज गो विद द डीएनएस ओनली, क्योंकि डीएनएस में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, पैसा भी कम लगता है, एंड देन यू विल बी ऑन द शिप। तुरंत आप जहाज पे चले जाओगे एंड यू आर अर्निंग, और लास्ट तक आप कमाते रहोगे। बीटेक में 4 साल की ट्रेनिंग होती है, एंड देन मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड देन यू आर गोइंग ऑन द जॉब, सो इट इज टेकिंग टाइम, बट लेटर ऑन मोर एडवांटेजेस फॉर द बीटेक मनी। क्यों एडवांटेज होते हैं? लाइक व्हेन यू लीविंग दिस फील्ड, जब आप लीव करते हो ना, तो बीटेक वाला इज एलिजिबल इन ऑल काइंड ऑफ द फील्ड, बट डीएनएस वाले इसके साथ ये है, बिकॉज वो बीएससी की डिग्री है। अब बीएससी के बाद में एमटेक नहीं कर सकता, एमबीए करेगा, बट बीटेक वाला एमटेक भी कर सकता है और एमबीए भी कर सकता है, उसके लिए दोनों स्ट्रीम खुली हुई, लेकिन इसके लिए एक ही स्ट्रीम। दूसरी चीज, डीएनएस वाला जब बाहर आता है तो टेक्निकल जॉब नहीं कर सकता, ओनली मैनेजमेंट टाइप के जॉब कर सकता है, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, शिपयार्ड मैनेजमेंट हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट हो गया, ही कैन डू द मैनेजमेंट ओनली, कैनॉट वर्क विद द टेक्निकल। लेकिन बीटेक वाला मैनेजमेंट भी कर सकता है और टेक्निकल भी कर सकता है, दिस इज द एडवांटेज फॉर द बीटेक, बट इट इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। नाउ दिस इज द IMU CT पैटर्न जो हर बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। जनरली दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चन वी आर गेटिंग इन दैट। ये नो नेगेटिव मार्किंग मैंने लिख रखी है, बट सम टाइम इट इज हैपनिंग द नेगेटिव मार्किंग आल्सो, यू हैव टू गेट अ गुड रैंक ओनली, देन ओनली यू विल गेट एलिजिबल। अब इसमें बच्चे बहुत पास करते हैं, बट अंडर 1000 के जो बच्चे आते हैं केवल वही बच्चे प्लेस्ड होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द ट्रेनिंग फॉर दिस आल्सो। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, हमें कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए, कंपनी में जॉब लेने के लिए भी तैयारी करनी होती है, कहाँ जॉब मिलेगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीज की ट्रेनिंग जो है विच इज डन बाय माई सेल्फ, मैं आपको हर चीज में हर जगह गाइड करूंगा, तो ये इस चीज के लिए है। IMU CT का प्रोग्राम 2 बार होता है, जो इस बार होगा वो प्रोबेबली मई और जुलाई में के बीच में जब भी है, कभी हो सकता है। एक नवंबर और जनवरी में होता है, जो इस साल नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। Now I'll tell you something about the coaching we are going to be start. The coaching will start from 1st of the March. 1st of the March से ये coaching start की जाएगी. The phone number is already displayed at the down. You guys can call me and contact. And the fee for this is keeping right now is very nominal, which is 20,000 only. So seat booking charge is 10,000 rupees. So which you can pay and book your seat. It will be start from the 1st March, will be online only right now due to COVID and other things. It will be online. And in that, what are the things involved? पहली चीज इन्वॉल्व रहेगी इसमें आपकी IMU CT की प्रिपरेशन। सेकंड चीज इसमें इन्वॉल्व रहेगी आपकी स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन, और जो इंटरव्यू आप वहां देने वाले हो, स्पॉन्सरशिप में जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन। दीज प्रिपरेशन, दीज 3 पार्ट, IMU CT, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम, स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू, दीज 3 थिंग्स बेसिकली इन्वॉल्व in this, and this is my guarantee, like I will send you on a very right place, right? Now if anybody have any doubt, they can ask their doubts. You can unmute yourself. You can unmute yourself and ask the questions. हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। ऑल क्लियर? ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग माई phone number. So I think you guys already have this. Just send me hi if you are interested and book your seat, because I will keep only 30 students, and it's my guarantee that out of 30, minimum 20 to 25 student I'll try to fit yourself with the sponsorship. So any doubts? वैसे तो I have put it in very deep way everything, but still किसी को कुछ है तो पूछ सकता है। No, I think all clear, but still आपको डाउट हो
So then you can call me and ask. Other than you can visit on my YouTube channel also. There also you can ask. Many of the videos I have kept on YouTube also. So there you will find many things, and it will be advantage. I have put very detailed way about many of the institute. My channel name is Merchant Navy India. I will share that link. I have just shared my YouTube channel. You can save it this, like and subscribe, so that next video, whenever it will be come over there, you can get answer. Okay? So we are ending here. Thank you to joining, and I hope everybody's got it, everything. Waiting for your response. Thank you. Thank you for the watching.